Good morning. Today we discuss solid fuel. In this lecture, we covered the topic characteristics of metallurgical coke, manufacturing of metallurgical coke, and Otto Hoffmann's byproduct coke oven method, recovery of byproducts. First topic is characteristics of metallurgical coke. Metallurgical coke means कोक जिसको हम मेटलर्जी प्रोसेस में यूज करते हैं और उस मेटलर्जिकल कोक में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट, प्योरिटी. इट शुड कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, एश, phosphorus and sulfur. Porosity, it should be porous so that combustion should be uniform and complete. मेटलर्जिकल कोक पोरस होना चाहिए, हमारा होल्स होने चाहिए उसमें, जिससे कि combustion हमारा यूनिफॉर्म हो और complete हो. Strength, the mechanical strength of coke should be very high to withstand the load of overlying solids like ore or fuels. Size, coke should be have medium size, neither too big nor too be small. Calorific value, coke should possess a very high calorific value. Cost, coke should be cheap and easily available. Combustivity, कोक का combustion easy होना चाहिए हमारा, easily हम उसको burn कर सकें. Reactivity, the reactivity of coke should not be very high. कोक की रिएक्टिविटी लो होनी चाहिए, अदरवाइज कोक मेटलर्जी प्रोसेस में जो हमने और यूज किया या अदर केमिकल्स यूज किए उससे रिएक्ट करेगा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटलर्जिकल कोक. मेटलर्जिकल कोक को बनाने के टू प्रोसेस है हमारी. फर्स्ट है हमारा बीहाइव प्रोसेस और सेकंड है हमारा ऑटो हॉफमन्स बाई प्रोडक्ट ओवन प्रोसेस. ऑटो हॉफमन बाई प्रोडक्ट ओवन प्रोसेस हमारे सिलेबस में है, बीहाइव सिलेबस में नहीं है, तो हम स्टडी करेंगे ऑटो हॉफमन्स बाई प्रोडक्ट ओवन प्रोसेस. In this method, air is excluded from the coking chambers and the necessary heat for distillation is supplied for external combustion of some of the gas recovered from the coking process. With modern byproduct ovens properly operated, all the volatile products liberated during cooking are recovered as gas and coal chemicals, and when coke oven gas alone is used as fuel, about 40% of the gas produced is returned to the ovens for heating purpose. In order to increase the thermal efficiency of carbonization process and to recover the valuable byproducts, Otto Hoffmann developed a modern byproduct coke oven. It consists of number of narrow silica chambers. Each chamber is provided with a charging hole at the top, a gas offtake, and a refractory lined cast iron door at each end for discharging coke. Coal is introduced into the chamber and the chambers are closed. The ovens are heated to 1200 degrees Celsius by burning a gaseous fuel and usually employ a regenerative principle to active economical heating. The few gases produced during combustion are passed to the regenerator's checker brick work that takes up the heat and gets heated to about 1000 degrees Celsius temperature. The flow of heating gases is the reverse so that the hot flue gases preheat the other chambers. The heating is continued till the evolution of volatile matter shees completely, which is about 11 to 18 hours. इस मेथड में एक स्पेशल टाइप की रीजनरेटिव ब्रेक्स होती हैं और ये रीजनरेटिव ब्रेक्स हीट को जनरेट करती हैं और टेम्परेचर हमारा होता है अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस. और हीटेड गैस में जब तक टेम्परेचर होता है तब तक वो उसी चैम्बर में क्या करती है हमारी मूव करती रहती है, उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और पूरे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में 11 to 18 आवर्स लगते हैं. When coke is formed, a massive raw pushes the red hot coke outside. It is subsequently quenched by water spray
The coke obtained by dry quenching is drier, clean and stronger than wet quench coke. जो कोक मिलता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मिलता है हमारा, और उसे कूल करने के लिए हम उसकी क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग मींस कूल डाउन। और क्वेंचिंग करने के लिए दो मेथड्स है हमारे, या तो हम वाटर स्प्रे करते हैं या नाइट्रोजन गैस। और वाटर स्प्रे करने के मेथड को बोलते हैं वेट क्वेंचिंग, और नाइट्रोजन गैस स्प्रे करने के मेथड को बोलते हैं ड्राई क्वेंचिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सिलिका चैम्बर। ये सिंगल सिलिका चैम्बर है हमारी, जिसमें टॉप में आपको कोल इनलेट करने के लिए एक इनलेट है हमारा, कोल चार्जिंग डोर है। कोल चार्जिंग डोर से कोल कोल बंकर्स में फिल होता है। पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं। कोल बंकर्स के नीचे फिर कोल चार्जिंग कार्स हैं। कोल बंकर्स कोल चार्जिंग कार्स में फिट हो जाते हैं और यहाँ से फिर कोल हमारा कोक चैम्बर में पास होगा। कोक चैम्बर के नीचे रीजनरेटिव ब्रिक्स हैं जहाँ से हीट जनरेट होती है, और हीट की प्रेजेंस में कोल का कार्बोनाइजेशन होगा, और कार्बोनाइजेशन होने पर कोल कोक में कन्वर्ट होगा। रैम जो है वो कोक पुशर है, जो कोल कोक में कन्वर्ट हो जाता है उसको पुश करके बाहर निकालता है। और जितनी भी हमारी बाई प्रोडक्ट गैसेस हैं वो बाई प्रोडक्ट गैसेस राउंड बॉटम जो फ्लास्क है हमारा, उस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाते हैं पाइप्स के थ्रू। And this is the whole structure of Otto Hoffmann byproduct method. इसमें जो 4 चैम्बर्स हैं वो 4 चैम्बर्स सिलिका चैम्बर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सिलिका चैम्बर्स नीचे रीजनरेटिव ब्रिक्स के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। रीजनरेटिव ब्रिक्स के साइड में दो आउटलेट है हमारे, इन आउटलेट से वेस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, और दो इनलेट होते हैं जहां से हम बर्निंग के लिए एयर और प्रोड्यूसर गैस पास करते हैं। और सारे सिलिका चैम्बर्स में से कोक ओवन गैसेस को बाहर निकालने के लिए एक पाइप पास होती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और यहाँ से हमारी कोक ओवन गैसेस बाहर निकल जाती है। रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में मेन प्रोडक्ट होता है हमारा कोक, लेकिन उसके साथ में काफी सारी गैसेस बाहर निकलती हैं, और वो गैसेस भी यूजफुल होती हैं, और उन गैसेस को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। उन बाई प्रोडक्ट को भी हम इस मेथड में रिकवर करते हैं, और उसको रिकवर करने का मेथड कहलाता है हमारा रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। The gases coming out from the oven is called coke oven gas and is composed of ammonia, hydrogen sulfide, naphthalene, tar, benzene. This can be separated from each other. Coal tar. The gas oven gas is passed through a tower where liquid ammonia is sprayed from top. Dust and tar gets collected in a tank which is heated by steam coils to recover ammonia back. Now ammonia, the gas is passed through a tower where water is sprayed. Ammonia goes into solution forming ammonium hydroxide. Naphthalene, naphthalene गैस को रिमूव करने के लिए हम ऊपर से स्प्रे करते हैं वाटर एट वेरी लो टेम्परेचर। Benzene, benzene gas is recovered with the help of petroleum. Removal of hydrogen sulfide, the gas is passed through a purifier filled with ferric oxide, and ferric oxide remove the hydrogen sulfide. और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करते समय फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फाइड में, और फेरिक सल्फाइड फॉर्म में ये एग्जॉस्टेड होगा, और एग्जॉस्टेड फेरिक सल्फाइड को हम रीजनरेट करने के लिए फर्दर इसको एक्सपोज करते हैं एयर में, और एयर में एक्सपोज करने पर इसमें सल्फर जो SO2 की फॉर्म में रिमूव होगा, फर्दर आयरन ऑक्साइड रीजनरेट होगा। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स मेथड। इसमें 5 चैम्बर्स होते हैं हमारे। फर्स्ट चैम्बर में कोल गैस के ऊपर स्प्रे करते हैं लिक्विड अमोनिया, तो हमारा बॉटम में तार सेटल होगा, तार को हम यूज करते हैं रोड बनाने में। सेकेंड चैम्बर में ऊपर से स्प्रे करेंगे वाटर, और वाटर की प्रेजेंस में कोल गैस में अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। थर्ड चैम्बर में वाटर स्प्रे करते हैं एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में नेफ्थलीन सेटल डाउन होगा। फोर्थ चैम्बर में कोई भी वॉश ऑयल स्पेशली पेट्रोलियम स्प्रे करने पर लाइट ऑयल मींस बेंजीन और इट्स होमोलोगस कंपाउंड्स रिकवर होंगे। और लास्ट चैम्बर में जो आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है हमारे आयरन ऑक्साइड्स के बेड, और ये आयरन ऑक्साइड्स के बेड हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करते हैं और फाइनली प्यूरिफाई कोल गैस
हमें मिलती है, और इस कोल गैस को भी हम एज ए गैसियस फ्यूल यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।